talking about periods, when a father is not talking about periods with his daughter. हमने गालियाँ भी सुनी है पेशेंट से, हेड अटका हुआ बच्चा, वो गांव से 10 किलोमीटर ट्रैवल करके आ रहे हैं, बेबी तो रास्ते में डेड हो जाता है. आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो डॉक्टर है एंड सबसे बड़ी बात कि वो नॉन जजमेंटल है. इसके बारे में हम जानेंगे जब उनसे डिस्कशन करेंगे तो क्यों नॉन जजमेंटल है और नॉन जजमेंटल होना कितना इम्पोर्टेंट है. और सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी जो डॉक्टर का एक प्रोफेशन होता है बहुत इंटेंस, बहुत सीरियस, बहुत जिम्मेदारियों से भरा हुआ होता है. इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे डॉक्टर महिमा से. एक छोटा सा इंट्रोडक्शन डॉक्टर खुद आज देंगी. हमारे शो का जो फॉर्मेट है, जो गेस्ट होता है वो खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है. रीज़न बिहाइंड जो हमेशा बताते हैं कि पूरा का पूरा जो प्लेटफॉर्म है WTS पे इन्फ्लुएंसर्स ड्रिवन प्लेटफॉर्म है, सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स के लिए ही है. तो इंट्रोडक्शन भी अगर वो खुद ही दें तो वो ज़्यादा बेटर होगा. डॉक्टर महिमा प्लीज़ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना प्लीज़ दें. Namaste, I'm Dr. Mahima Kak Nagpal. I'm a gynecologist and a practicing IVF specialist since 9+ years. मेरा special interest है to treat infertility. That has always been my go-to goal, to give निसंतान couples को baby देना उनके हाथ में, उनकी problems को diagnose करना correctly, which is very important, and just end पे वो एक खुशी का पल उनको मैं दे पाऊँ for the rest of their lives. Also, I started my Instagram page somewhere around 2021, and I am a very micro influencer, I would tell myself. The whole purpose of starting this page was to educate my audience, girls and boys, both of them, because there was so much of misinformation flouting around in the market about the COVID vaccine, about COVID and pregnancy, COVID and infertility. Should they be planning a baby during that time? And because everybody was inbound, they thought baby making process ही कर लेते हैं, but is it actually safe? Is it actually, would you be able to get up and go to the hospital? And then my phones were flooded all the time. And of course, I was, active in a lot of social service and treating COVID cases and everything. So then I thought, why not? Let's just make a page where, I can post videos and ताकि general public को कुछ मदद मिल सके from me. That's it. Okay. डॉक्टर महिमा नॉन जजमेंटल क्या है ये आप थोड़ा बेहतर बता पाएंगे और ज़रूरी है बताना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो नए लोग होते हैं डॉक्टर्स के पास जाने से पहले एक हिचक रहती है उनके मन में कि यार ये सवाल जाकर के डॉक्टर से किस तरीके से पूछें. ये बहुत इम्पोर्टेंट है एजुकेशन और एक अवेयरनेस कि आप डॉक्टर के पास जाइए तो डॉक्टर्स ना ओपन है आपकी सारी बातों को सुनने के लिए, और वो आपको उन परेशानियों के लिए वो बैठे हैं जिनको वो सॉल्व करने के लिए मतलब काम करते हैं. तो ये कितना इम्पोर्टेंट है नॉन जजमेंटल जो एक चीज़ है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए एक अवेयरनेस के तरीके से कि क्या आप सोचना चाहिए जो किसी को भी कुछ भी परेशानी है. तो कुछ एक छोटा सा एग्जांपल के साथ भी अगर आप बता देंगे. Of course, I think I would like to say, as soon as एक girl 13 साल की होती है, उसमें bodily changes होते हैं, that is called puberty. फिर adolescence से वो puberty पे आती है. Puberty से then they have, their hormonal fluctuations and everything happens, and then they started meeting boys, they have boyfriends, they have a sexual life, then they get married, they can start a sexual life then, or they are already experienced the sexual life, then they want to be into the baby making process. After that they experience menopause, and there are so many levels in a woman's body, so many changes एक औरत को go through करना पड़ता है जो कोई कभी भी नहीं imagine कर सकता. Hormones are directly related to your brain, and being coming from a conservative lower middle class family, there are so many taboos which are attached to so many female conditions. So I think when a family is not open about talking about periods, when a father is not open
about talking about periods with his daughter, how would she think कि somebody outside, a woman or a doctor outside, would be comfortable in discussing the same thing? It is just something as simple as periods. I mean, this is, I think, the biggest power a woman has been given by God to procreate and to have a baby. That is how the whole period cycle works. So ये छोटी छोटी बातें होती हैं, हमें तो बहुत ही छोटी लगती है. हमें लगता है कि आपको इन चीजों के बारे में हमेशा पता होना चाहिए, कोई भी नॉन क्लैरिफिकेशन नहीं होनी चाहिए. एवरीथिंग शुड बी क्लियर इन योर हेड कि पीरियड्स क्या होते हैं, सेक्स लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्ट्रासेप्शन क्या यूज, समथिंग एज बेसिक एज कॉन्ट्रासेप्शन, प्रिवेंटिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. गर्ल्स को यूटीआई होता है, उनको लगता है उन्होंने ही कुछ गलत किया है कि मुझे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है. भाई 60-70% गर्ल्स को होता है. आई मीन दैट इज अ वेरी नॉर्मल. इवन न्यूबॉर्न गर्ल्स को, मतलब 2-3 years की गर्ल्स को भी यूटीआई होता है, एंड द मदर्स हैव टू बी वेरी केयरफुल फ्रॉम द बिगिनिंग. सो दिस इज नॉट, वी हैव बीन एक्चुअली कंडीशनड टू थिंक कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे दिमाग की वजह से है या मेरी वजह से है, और मेरे को इसको, अगर मैं इस प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगी प्रॉब्ली विथ माई पेरेंट्स और विथ अ डॉक्टर, आई वुड बी जज्ड. Non-judgmental is whatever you come and tell me, whether it may be about the amount of sexual partners you have, or a rash which you have down there, which you might think कि Google तो आपको हर चीज का आंसर कैंसर देता है, या तो आपको HIV हो गया या आपको हेपेटाइटिस हो गया, and probably it is just a rash. I mean, you have to be at the right doctor at the right time to get the right guidance, ताकि आप अपने आप को डिसअप्रूव ना करो in front of the society that this is there, and there is, मतलब, I don't believe in body shaming, whether you are fat, you are thin, you are black, you are white, whatever it may be, it is you. I mean, there are a lot of cases where I feel my patients come and that doctor body shame me for being obese, for being 100 kgs. But I think I always want to look at my patient as I'm looking at myself. That if I would have been at her place and I would have somebody telling me that, oh, you need to lose 25 kgs, उससे पहले मैं आपको ट्रीट नहीं करूंगी, that is unrealistic. आपको पेशेंट के इमोशनल, फाइनेंशियल, फर्टिलिटी गोल्स, गाइनी गोल्स को देखना है, एंड तब उसको ऐसी एडवाइस देनी है जो वो एक्सेप्ट करके इम्प्लीमेंट कर पाए अपनी लाइफ में. एंड यू हैव टू बी, of course, an educated doctor, but be a friend as well, so that you can guide the patient correctly. महिमा, एक चीज ना मतलब गौर की जाती है बहुत बार कि लोग ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं बॉडी को लेकर के, या फिर कुछ परेशानियां आती है, सिंपली व्हाट दे डू इज कि वो गूगल करते हैं, कुछ भी वहां से उठाते हैं और जाकर के मेडिसिन को यूज कर लेते हैं, और उसके बहुत बार साइड इफेक्ट्स भी होते हैं. तो इस तरीके के भी कुछ केसेस आपके पास डेफिनेटली आते होंगे. आप इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं. डॉक्टर्स हमेशा प्रैक्टिस ही करते हैं. डॉक्टर्स अपने आप को कभी ऐसा बताते नहीं है कि वो मतलब फुल डॉक्टर बन गए हैं. अगर मैं गलत हूं तो आप प्लीज इसको करेक्ट कीजिएगा. वो हमेशा प्रैक्टिस ही करते हैं. तो इस प्रैक्टिस के दौरान आपको मतलब ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स डेफिनेटली मिले होंगे. तो ऐसा कोई एक एक्सपीरियंस है जो आप प्लीज शेयर करें, ताकि ना जो हमारी जनता है उनको देखें, उनको समझे कि आपको गूगल के ऊपर बिल्कुल ही रिलाई नहीं करना चाहिए. डॉक्टर्स हमेशा ये कहते हैं कि आप तो कुछ भी परेशानी है, कुछ भी समस्या है, तो आप प्लीज डॉक्टर्स को कंसल्ट कीजिए. आप ज्यादा गूगल सर्चेज या इन चीजों के ऊपर रिलाई मत कीजिए, क्योंकि हमेशा जितने भी डॉक्टर ये कहते हैं कि वो ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता है. ठीक है, कई बार उसमें 10 चीजें दिख जाती है. जैसा आपने बताया कि कुछ भी ऐसे परेशानी है जिसको गूगल ने दिखा दिए, STD है या HIV है. तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताइए, एक एक्सपीरियंस के साथ अगर शेयर करते हैं. I would like to share, बहुत recently अभी मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है on Instagram. I don't usually give any medical advice on DMs Instagram के, so they always have to take a consultation from me. So and I do my weekly Q&As, जिसमें हम मतलब I tell them, ask me anything gynae related, IVF related. So they ask me queries and then I answer on the story, so that not one person but at least 500-600 people can benefit from my answer. So one girl, early morning, 7 o'clock, she messaged me on DM, and incidentally I saw her DM.
and she said, Doctor, I really want to thank you for your Q&A which you did a month back. She had texted me after a month that आपने बोला था कि if you have missed your period and it's been 7 days or 3 days, something like that was the issue. So I had told her to wait for another 7 days before you can test your period, test for pregnancy. And if you're pregnant, you need to see a doctor as soon as possible. Don't try to, she was an unmarried girl. In her question only, she had written to me. And then she texted me again that I took a pill. Somebody had given me some abortion pill and I took it, and then I came pregnant. So I was like, you can lose your life, you have to get a ultrasound done, you cannot just take a pill and be home. After that, she told, I was like, no, I can connect you to a local doctor, because she was not even from Delhi. Okay. So I was like, I would definitely be able to find somebody for you, but you have to get up and do. But then she didn't contact me after that. 1.5 months later, she messaged me to thank me for telling her to get up and get an ultrasound done, because she actually had an ectopic pregnancy, and that pregnancy was not normal. That pregnancy was not normal, and the pregnancy was stuck in her tubes. Okay. And if she would not have gone to the doctor that day, she would have died due to internal bleeding. And it was a major surgery which she had. One of her tubes got removed during that surgery, but at least she's healthy, safe and alive. So that really moved me, to make more content and, be out there for everyone, because you don't know in what way how you affect any person's life. Exactly. क्या इंस्पायर किया, कौन सी ऐसी बात थी जिसने आपको अपना एक सोशल मीडिया पे भी एक्टिव होने के लिए आपको जो इंस्पायर किया कि नहीं यार, लेट्स डू वन थिंग, कि कहीं ना कहीं बीइंग अ डॉक्टर आपकी लिमिटेशन होती है कि आप दिन में 100 पेशेंट 200 पेशेंट, इससे ज़्यादा मतलब एक मेंटल स्ट्रेंथ भी नहीं होगा किसी को कि वो उससे ज़्यादा पेशेंट्स को हैंडल कर पाए. तो क्या एक चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया कि आप ना ओपन प्लेटफॉर्म पे जाएं जहाँ पर आप चीज़ों के बारे में डिस्कशन शुरू करें? जैसे आपने बताया आप Q&A सेशंस भी रखती हैं, लोग आते हैं, सवाल पूछते हैं, कई बार लोग कंसल्ट भी करने के लिए आते होंगे. तो क्या चीज़ थी जो आपको बोला कि नहीं यार, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो टू द मासेस, और सबके बीच में ना एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आई शुड कम एंड डू दीज थिंग्स? तो इन चीज़ों को करते हुए क्या चीज़ों का ध्यान रखती हैं? कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप अपने प्लेटफॉर्म पे रील्स के थ्रू या फिर इन्फोग्राफिक्स के थ्रू आप बताती हैं? एक्चुअली इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं. आई हैव बीन ऑलवेज सोशली वेरी एक्टिव. आई ऑलवेज वांट टू डू अ लॉट ऑफ सोशल वर्क, help people out. I am that kind of a nature, and touch wood, God has put me in this profession of being a doctor where I can do that openly as well. एक वो एस्पेक्ट है. दूसरा ये एस्पेक्ट है दैट विथ सो मच ऑफ मिसइंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, thanks to these 1 million, 2 million followers wale influencers which are giving away free medical advice with no authentic source and with no paper to support their claims, to give an explanation to them, also to tell the public that everything, if a reel is very appealing and very beautiful, that doesn't mean that the person sitting there is authentic enough to give you medical advice. Also, by the grace of God, I have a good patient doctor communication with all my patients. And during COVID times, I was so busy with all of them socially that I thought, if I'm saying the same, or ऐसा पॉइंट आ गया था कि वो मैसेज मुझे कॉपी पेस्ट करके 5 लोगों को, एक ही क्वेश्चन होता था जो 5 लोगों को मुझे व्हाट्सएप पे भेजना पड़ता था कि दिस इज हाउ इट इज, इसका ये मतलब है, डोंट वरी, ये हुआ, बिकॉज एवरीबडी वांटेड माय थॉट्स on whatever the headlines were during that time, because everybody was so uncertain and so scared during that time, so they wanted me to speak up. So I was like, if I can help my family and friends and patients and give them my bites, then why not give the same help to thousands other people there on the internet who are so Instagram is one platform where people are really spending a lot of their hours in a day, and then what better place than that to be out there and help everyone. बहुत अच्छी बात है. मतलब बीइंग अ सेंसिबल डॉक्टर और
इंफॉर्मेशंस को बहुत ही फिल्टर करके प्रोसेस करके फिर अपने ऑडियंस के बीच में देना, ये बहुत जिम्मेदारी वाली बात है। डॉक्टर्स को भगवान का रूप भी माना जाता है। बीइंग एन गायनी, आपको तो मतलब बहुत सारी एक्सपीरियंस इस तरीके के मिले होंगे, और मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जब आप फादर बनने वाले होते हैं तो कई बार ना वो इमोशंस भी आते हैं जब आप ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े होते हैं और सडनली वो जो डॉक्टर है गायनी वो बाहर आकर के बताती है कॉन्ग्रेचुलेशन आपके बच्चे हुए हैं। तो वो इमोशंस भी ना कहीं निकलते हैं और वो आपको दिल से बड़ा शुक्रिया करते हैं। तो इस तरीके के कुछ एक्सपीरियंस के बारे में भी बताइए। वो वाले experiences of giving like delivering a child was different altogether. Like we used to be used to do so many deliveries in government hospitals. वहाँ पे तो उनका government hospitals तो वैसे ही बदनाम है for normal deliveries and कि doctors मारे हैं हो रहे हैं वो कुछ नहीं होता. But हाँ, of course, normal delivery, cesarean, everything is vaginal delivery, cesarean, everything is very difficult, for a woman, and she goes through so much pain during that time. And then हमने गालियां भी सुनी है पेशेंट से कि मेरे को हटा दो, मैं भागना है। हमने पेशेंट्स को हाथ से भी पकड़ा है, बिकॉज कभी कभी पेशेंट अपनी ड्रिप लेकर ही मैदान में भाग जाती थी सफदरजंग के, एंड उनको पकड़ के लेकर आते थे कि ये बच्चा डिलीवर होने वाला है एंड ऑल दैट। बहुत बहुत ड्रामा होता था। But then, the smile on their faces by the end of the day when the baby used to be out crying, for us, the best noise is a baby coming out crying. So that moment of happiness, that is unimaginable, which our patients don't realize that उनको जितनी खुशी होती है हमें भी उतनी होती है for them, because we feel that it is an accomplishment. And same goes for my IVF patients. I mean, there is so much of backlash story involved when a couple is facing infertility. And from first day of consultation to जब हम उनका एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, एंड फिर वो एम्ब्रियो ट्रांसफर 14 दिन के बाद पॉजिटिव आता है, एंड फिर जब वही पेशेंट हमारे पास अपना बेबी लेकर आता है, दैट यू आर द वन हु पुट this baby inside my uterus, these feelings are undescribable. ओके, तो थोड़ा आईवीएफ के बारे में बात करते हैं। बेसिकली आपकी एक्सपर्टीज है एंड आप उसमें बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ना अभी भी टैबू है लोगों के मन में कि आईवीएफ कराना है नहीं कराना है, वो मन में ना अभी भी शंका रहती है। वो मेल ईगो की अगर बात करें ना तो कई बार लगता है कि ठीक है यार, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझ में कोई कमी नहीं है। तो उन चीज़ों को भी आपने बहुत देखा होगा, ठीक है? उन चीज़ों से किस तरीके से आपने डील किया, किस तरीके से समझाया कि नहीं दिस इज राइट? क्योंकि बहुत बार आईवीएफ के लेकर के जो केसेस होते हैं या फिर जो भी आईवीएफ के थ्रू अपने बच्चे को कंसीव करते हैं, उनको एक अलग नज़र से भी देखा जाता है। छोटे शहरों की बात कर रहा हूँ, छोटे शहरों में भी अभी भी ये टैबू है। रिपोर्ट्स भी अगर आप उठा करके देख लें, और लोग ना फ्रीली बात भी नहीं कर पाते छोटे शहरों में। अभी ट्रेंड काफी बढ़ा है आईवीएफ को लेकर के, पिछले 3-4 सालों में, 5 सालों में काफी सारी कंपनीज भी आ गई आईवीएफ को लेकर के। इसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप कुछ एक अच्छा सा कुछ बताएं कि नहीं ऐसा कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही तरीका है, प्रोसेस है जिसके थ्रू चीजें मैच्योर होती हैं, तो इस पे अगर आप थोड़ा सा हाईलाइट करें ना तो बिल्कुल ही ऐसा ऐसा तो नहीं होता ना कि वो जो ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है उससे बिल्कुल ही अलग है, फिर बच्चे में कोई परेशानी आती है, फिर बच्चे में कोई डिफेक्ट आता है। ये भी कई बार लोगों का ना दिमाग में रहता है सवाल कि अगर आईवीएफ के थ्रू हो रहा है तो बच्चे को कुछ परेशानी हो जाएगी, फिर माँ को कुछ परेशानी हो जाएगी। तो ये चीजें भी ना अगर आप थोड़ा सा इस पे हाईलाइट करनी चाहिए। डेफिनेटली आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग कि आपकी शादी हो गई है, देन आफ्टर 2-3 months यू स्टार्ट ट्राइंग फॉर अ बेबी। 3-4 महीने आपको नहीं हो रहा, आप जा रहे हो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास। इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट का एक टाबू होता है कि ओहो ये तो डॉक्टर के पास जाते ही मतलब कपल इनफर्टाइल है। ऐसा नहीं है। इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपको क्या क्या बोलता है, आपको पहले बोलेगा कि आपकी फर्टाइल विंडो कौन सी है जब आपको कॉन्टैक्ट रखना है एंड बेबी हो सकता है। ऑफ कोर्स अगर आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हो वो थोड़े टेस्ट तो कराएगा, एंड यू हैव टू बी ओपन टू दैट, बिकॉज अ डॉक्टर ऑल्सो डजंट वांट टू मिस द अपॉर्चुनिटी कि पेशेंट मेरे पास आया है, मैं उसकी कोई डिजीज मिस ना कर दूं। मतलब देन फिर वो बहुत बड़ी बात हो जाती है फॉर अस डॉक्टर्स ऑल्सो कि बस ये 5 टेस्ट करवा लेते
अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेल एंड गुड. अगर उसी में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं पेशेंट के और 2-3 साल क्यों वेस्ट करूं बाय ट्राइंग नेचुरली. सो जब आप what to expect when you're going to a doctor is that she will be asking you he or she will be asking your history, telling you when to have contact to have a baby. If you've been already trying, 1 साल से ज्यादा तक आप ट्राई कर रहे हो, that means कि आपको थोड़े ट्रीटमेंट की जरूरत है. ठीक है. Also, one thing I would like to tell the males is if your doctor is telling you to get a semen analysis done, please get a semen analysis done, because औरतों को उससे 100 गुना ज्यादा टेस्ट कराने पड़ते हैं to see कि उनकी फर्टिलिटी के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. बॉयज को सिर्फ एक सीमेन एनालिसिस कराना होता है. गर्ल्स का एज इज नंबर 1 फैक्टर इन देयर फर्टिलिटी डिक्लाइनिंग. एक बार एक औरत 30 साल की हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी डिक्लाइन होना शुरू होती है. एक बार वो 35 होती है, वो और फास्ट डिक्लाइन होती है, रैपिडली डिक्लाइन होती है उनकी फर्टिलिटी. बॉयज के साथ ऐसा नहीं है. फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली बॉयज को कोई फर्क नहीं पड़ता. एक आदमी 60 साल की उम्र तक भी बेबी पैदा कर सकता है. Okay. स्पर्म क्वालिटी यूजुअली किसी की अगर बेसलाइन से अच्छी है तो वो रैपिडली डिक्लाइन नहीं करती जब तक आप एक चेन स्मोकर ना हो. स्मोकिंग इज द नंबर 1 फैक्टर विच कॉजेज डिक्रीज इन स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम. सो अगर आप फर्स्ट विजिट में अगर आपको डॉक्टर बोल रहा है सीमेन एनालिसिस करा लो और आपको एक ही बार ही कराना है, सो आई थिंक इट शुड नॉट बी अ बिग डील टू गेट इट डन फर्स्टली. सेकेंडली, अगर आपके सीमेन एनालिसिस में फर्स्ट टाइम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, दैट मीन्स कि आपको कोई जेनेटिक कॉज है, आपको बचपन से कोई कॉज है जो ऑपरेशन से ठीक हो सकता है. 90% ऑफ द टाइम्स हम ऑपरेशन से या तो वो नेचुरली स्पर्म प्रोड्यूस करने लग जाते हैं या बाया माइक्रोस्कोपिक हम 5-6 स्पर्म ढूंढ के भी हम IVF के द्वारा आपको बच्चा दे सकते हैं. सो यू डोंट हैव टू शाई अवे फ्रॉम टेलिंग योर प्रॉब्लम्स ऑल्सो टू द डॉक्टर एंड फेसिंग इट टुगेदर. फिर आते हैं, जैसे आप IVF स्पेशलिस्ट के पास आए, वो सीधा आपका बच्चा नहीं हो रहा, वो ये नहीं बोलेगी आप IVF करा लो. वो पहले आपका ट्रैक करेंगे कि आप ओव्यूलेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. फिर वो बताएंगे कि आपको किस टाइम पे कांटेक्ट रखना है टू हैव अ बेबी. अगर वो 3-4 महीने नहीं होता, फिर एक IUI करके प्रोसीजर होता है, वो भी बिल्कुल नेचुरल होता है. It is just the girl is ovulating and then the semen is taken of the husband, processed in the lab. उससे वो सारा dead sperm वगैरह निकल जाता है. The purest form of sperm is injected inside her uterus. So this is अपने आप वो ovulate करती है, sperm egg से मिलता है and baby हो जाता है. So this is a very natural form of having a baby, and इसका success rate is around 15 to 20%, which is very good. और IVF अगर हम कराते हैं, एक चीज और भी है जो लोगों के माइंड में है कि IVF 100% सक्सेसफुल है. IVF 100% सक्सेसफुल नहीं है. IVF is only 60 to 65% successful. That is, if a couple जिसका egg is good, जिसका sperm is good, जिसका embryo is good, uterus is perfect, then also the chances of the woman conceiving is around 60 to 65% only. So there can be some unknown causes which are not diagnosed in the first visit, and वो किसी unexplained cause के बाद first time में pregnant नहीं होती, उसमें उनको फिर से IVF कराना पड़ता है. Second time IVF cycle में around 80% people get pregnant, and third IVF cycle, that is the third embryo transfer में around 95% people get pregnant. तभी भी 100, because there are some patients जो IVF failures होते हैं, recurrent IVF failures, उनमें हमें बहुत सारी specialized techniques use करनी पड़ती है to give them a child. So this and तो also जब फेलियर होता है तो वो बॉडी पे तो इम्पैक्ट किस तरीके का होता है? इम्पैक्ट इस तरीके का होता है कि वो हम एम्ब्रियो डालते हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता. अच्छा. सो इम्पैक्ट आप कहें, क्योंकि हम पोस्ट IVF, पोस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर, वी गिव देम अ लॉट ऑफ मेडिकेशंस उनकी बॉडी ताकि प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर पाए. सो उससे थोड़ी ब्लोटिंग, वेट गेन, मूड स्विंग्स, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, बिकॉज वी आर टेलिंग द बॉडी कि अब आप प्रेग्नेंट हो. सो जो प्रेगनेंसी में हार्मोन फ्लक्चुएशंस होते हैं वो उनको एक्सपीरियंस हो सकते हैं. बट आफ्टर वी स्टॉप द मेडिकेशंस, वंस द प्रोसीजर इज नेगेटिव, उनको पीरियड आ जाता है एंड देन दे आर बैक टू नॉर्मल. ऑलमोस्ट 70-80% सारा हार्मोन फ्लश आउट हो जाता है with the period when they get. And as far as babies who are born through IVF and how normal or abnormal they are absolutely normal.
we have around 90 to 95% fertilization rate, that is egg को जब sperm से inject करते हैं वो fertilize होके embryo बनता है, test tube baby जिसको बोलते हैं. So उसमें कोई abnormality नहीं होती है. एंड आजकल वैसे भी टेस्ट आते हैं टू टेस्ट द एम्ब्रियो जेनेटिकली कि उसमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है. सो आप अपना एम्ब्रियो, अगर आप इतना डरे हुए हैं कि वो कुछ एबनॉर्मल एम्ब्रियो मेरी वाइफ में या मेरे में ना डल जाए, सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप उसको जेनेटिक टेस्टिंग कराइए एम्ब्रियो की बिफोर इट इज ट्रांसफर टू योर यूट्रस एंड हैव अ हेल्दी बेबी. ओके. अच्छा, लोगों में थोड़ा मिसकंसेप्शन भी है कि सिजेरियन बच्चा होता है तो परेशानियां होती है या फिर नेचुरली होता है तो वो ज़्यादा बेटर होता है. लेकिन अभी मतलब आप इस प्रोफेशन में काफ़ी टाइम से हैं और बहुत सारे रिपोर्ट्स भी आती हैं, तो रिपोर्ट्स में हमेशा ये रहती है कि ना ज़्यादातर बच्चे ना भी सिजेरियन ही हो रहे हैं और नेचुरली बहुत कम हो रहा है. तो उसके पीछे रीज़न क्या है? मतलब अभी भी छोटे शहरों में, छोटे गाँव में जाए तो अभी भी वो ना किसी घर में ऐसे कोई आया है या फिर वो आकर के डिलीवरी करा देती हैं, वो कितना सेफ है, कितना सेफ नहीं है, और वो नेचुरल डिलीवर कराती है. तो शहर की तरफ जैसे ही शिफ्ट होते हैं तो आज भी प्रेफरेंस ज़्यादातर डॉक्टर्स का सिजेरियन ही होता है. तो इसमें आप थोड़ी सी कुछ बातें अगर बताएं. इसका एक रीजन है दैट शहरों में सिजेरियन क्यों ज्यादा होते हैं, क्योंकि शहरों में लोग रेगुलरली डॉक्टर को विजिट करते हैं थ्रू आउट देयर प्रेगनेंसी. कोई भी डिजीज डायग्नोस होनी होती है वो टाइम पे हो जाती है. डिजीजेस इंक्लूड डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी प्रॉब्लम्स, डिरेंज लिवर फंक्शंस हो सकते हैं. कितने लोगों को जॉन्डिस हो जाता है प्रेगनेंसी में. गांव में लोग इतना डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है. उनकी बेसिक 4 एंटीनेटल विजिट्स पूरी हो जाए वो बहुत बड़ी बात है गांव में. जब डिजीजेस सिटीज में डायग्नोस होती हैं तो हम उसको एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी का टैग देते हैं, ताकि हमें एज अ डॉक्टर याद रहे कि जब ये पेशेंट आए तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी, इसको हमें 10 मिनट एक्स्ट्रा देने ओपीडी में. इनका बीपी 2 बारी चेक करना है, इनकी शुगर की रिपोर्ट को फिर से देखना है, इनका यूरिन टेस्ट देखना है. इस प्रेगनेंसी को हम केयरफुली मॉनिटर करें तो वो वजाइनली डिलीवर कर सकती हैं. बिकॉज हम उनको इतना केयरफुली मॉनिटर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं बीपी तो नहीं फ्लक्चुएट हो रहा, बच्चे का वजन कितना है अल्ट्रासाउंड में. समटाइम्स मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ सिजेरियंस आर बिग बेबी है, 4 किलो से ज्यादा का बेबी है, उनको हम करते हैं. गर्ल्स हु आर नॉट एक्सरसाइजिंग, छोटी जो गर्ल्स होती हैं 5 फुट से कम की, वो शॉर्ट स्टेचर मानी जाती हैं. तो उनको हम पहले ही बोलते हैं कि आपका सिजेरियन होने के चांसेस ज्यादा हैं, बच्चा नीचे अटक सकता है नॉर्मली आने में. जो 35 इयर्स पीपल आर गेटिंग मैरिड लेट, 30 साल में 35 साल में शादी हो रही है, 35 इयर्स से अबव की प्रेगनेंसी इज ऑल्सो हाई रिस्क प्रेगनेंसी, दैट इज एल्डरली पेशेंट. सो डॉक्टर्स नो कि कब हमें पेशेंट को नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह लेना है और हाई रिस्क प्रेगनेंसी तक लेना है. उससे उसका मैनेजमेंट चेंज होता है. मैनेजमेंट चेंज होता है तो उससे हम उसको पेशेंट को ज्यादा मॉनिटर करते हैं, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू मिस एनी साइंस. वी डोंट वांट पेशेंट टू थ्रो अ फिट बिकॉज ऑफ ब्लड प्रेशर और पेशेंट टू हैव सच हाई शुगर्स कि वो डायबिटिक कोमा में चली जाए. सो बिकॉज हम उसको डायबिटिक कोमा क्या होता है? डायबिटिक कोमा होता है जब आपके ब्लड में sugar persistently high होती है. So that sugar goes to the brain and then you can go, that is a end complication of diabetes. So वो तभी हो सकती है, रूरल पॉपुलेशन में हो सकती है. कितनी बारी आता है विलेजेस में, माँ बच्चा पैदा करते करते उनकी डेथ हो गई, बच्चा नीचे अटक गया. हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कितनी बारी देखते हैं कि हेड अटका हुआ बच्चा, वो गांव से 10 किलोमीटर ट्रैवल करके आ रहे हैं, बेबी तो रास्ते में डेड हो जाता है. इन सब चीजों को कोई डिस्कस नहीं करता बिकॉज दे फील कि हाँ ये तो होता है. But अब we are actively working with so many societies in India to reduce the maternal mortality. Maternal mortality क्या होता है कि माँ जो चाइल्ड बर्थ में जिनकी डेथ होती है, हमें वो रिड्यूस करना है. हमें अनीमिया सबसे बड़ी चीज है, एक सिंपल सा हीमोग्लोबिन का टेस्ट है, अनीमिया डायग्नोस करना है. आवर लेटेस्ट स्लोगन इज टू मेक भारत अनीमिया मुक्त. सो एक अनीमिया जैसी चीज अगर हम टाइमली ट्रीट कर लें तो मैटरनल डेथ्स नहीं होंगी. सो दैट इज द ओनली शिफ्ट कि वाई अर्बन में ज्यादा क्यों सिजेरियन है, क्योंकि लेट मैरिजेस हैं, एज औरतों की बड़ी है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब टाइमली डायग्नोस हो जाता है. लोगों को और ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को किडनी की होती है, वो ऑलरेडी डायग्नोस्ड होती हैं. सो वी हैव टू मॉनिटर देम एंड गिव
a healthy delivery to a healthy mother to and give her a healthy child in her hand. That is our ultimate goal. अब वो vaginal हो या cesarean हो, that is completely up to the patient profile. And also vaginal and cesarean recovery is almost the same. So ऐसा नहीं है कि vaginal में आप कल खड़े हो जाओगे और सिजेरियन में कल खड़े नहीं हो गए, या वजाइनल में आप 40 दिन तक बैठे ही रहोगे और सिजेरियन में आप 40 दिन तक बैठे रहोगे. एवरी जर्नी इज डिफरेंट एंड यू हैव टू बी physically strong to physically and mentally strong to take over both these forms of delivery. Okay. So medically अगर देखा जाए तो what is the perfect age to conceive and for both boys and girls? There is no perfect age to I would say कि हाँ इससे पहले हो जाना चाहिए, because there are a lot of aspects before a couple plans a baby. You have to be socially ready, medically ready, financially ready, career wise ready. Will you be able to borne the expenses of the child? So वो सब readiness, mental readiness, ताकि आपको पोस्टमार्टम डिप्रेशन ना हो जाए, वो सब रेडीनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, rather than me telling you to giving you a specific age. But yeah, I feel by 30 you should be having your first child. And if you are delaying for a girl, if you are delaying to get pregnant, then I think at least by 30 a girl's fertility testing should be done. That there is this blood test known as AMH, which she can get done at any time of her cycle, which tells us about the quantity and quality of her eggs in her ovaries. So if she knows where her fertility lies. If it is somewhere around 1, so we know कि fertility बहुत जल्दी decline हो जाएगी. Better है कि बच्चा जल्दी plan कर लो. अगर वो married हैं, अगर उनको eggs freeze कराने हैं, अगर वो around 4-5 तक है उनका AMH, 3 है, 3+ है, then they can wait for a few more years to get pregnant. I do have a lot of girls who are recently married. They are 40 and then their AMH fertility potential is very good. उसमें बस ये होता है कि post 35 आपका fertility भी decline करती है, and जो genetic material आपके eggs में होता है, girls के eggs में होता है, that switches. So genetically abnormal बच्चे पैदा हो सकते हैं. Okay. So that is the only reason why we tell you to have your kids by 30 years of age. That is only, जरूरी नहीं है सब में हो, but yes, the chances increase and that can be a problem. Okay. थोड़ा सा बहुत इंटेंस है, बहुत चीज़ों पे हमने बात की, तो कई बार लोग बोलते हैं कि बहुत डॉक्टर्स में सीरियस होते हैं, तो थोड़ा सा ना एक आपको दूसरे साइड पे अगर हम लोग बात करें कि डॉक्टर्स मतलब अपने पेशे को छोड़ करके ही बाकी जिंदगी को किस तरीके से जीते हैं, वो अपनी जिंदगी को मतलब किस तरीके से एक लंबा टेन्योर होता है डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए, 5 साल MBBS, फिर MD करते हैं, फिर बाकी चीज़ों की स्पेशलाइजेशंस करते हैं, तो एक बहुत लंबा टेन्योर आप लोग अपनी पढ़ाई में देते हैं. एंड उसके बाद फिर इंजॉय करने का मौका कम मिलता है. किस तरीके से फिर आप लोग जिंदगी को जीते हैं, वो भी कुछ चीज़ें अगर थोड़ी सी बताएं ना, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे ऐसे नोन है जो मेरे क्लोज है, वो भी डॉक्टर बहुत मस्ती करते हैं, ठीक है, तो उस एस्पेक्ट में भी अगर कुछ बातें आप बताएं. One thing I will say, I'm very blessed in this department that you have to have a very good friend circle and family circle to be, to actually detach from the whole hospital scenario and enjoy yourself. First point is that my husband is a non-medico, so उसको कुछ समझ नहीं आता है कि ये क्या काम पे करके आती है, and he's least interested कि काम पे क्या हुआ. There is no competition. He's not a doctor. I am the boss because I am the doctor. So वो है. My family is very supportive because they know what all a doctor has to go through when they are in the hospital, and they have been very supportive even when I was working in government hospitals doing night duties and everything. There is, I feel blessed. महिमा, स्टार्टिंग के फेज में आई थिंक जो डॉक्टर्स नए डॉक्टर्स उनको नाइट ड्यूटी बहुत करनी पड़ती है. आई थिंक 24 आवर्स की भी ड्यूटी उनकी लगती है, तो ये स्टार्टिंग के फेज में आई थिंक डॉक्टर्स के लिए होता है.
हाँ, I have done 36 hours duty. Oh my God. So उसमें हमें of course सोने को मिलता था, but of course sleeping on a hospital bed and using common restrooms and sleeping on your own bed बहुत difference होता है. And 36 hours की ड्यूटी के बाद घर पे भी नींद नहीं आती है 24 घंटे, because आपके दिमाग में सिर्फ वो emergency ambulances and people screaming and howling ही चल रहा होता है. And but of course if you're a doctor you have signed up for this and there are no regrets ever for whatever, because even when we were doing 24-36 hours duty, I've been blessed with the best seniors and very good colleagues, where I mean I didn't even feel that something, you know, I was doing something abnormal, because I think doctors को for granted ही लेते हैं कि उनको तो काम करना ही है. So this has been this thing plus for me, and enjoyed every bit of it. महिमा, मेंटल ब्रेकडाउन पे हमेशा रहता ही होगा, कभी ना कभी इस पोजीशन में आते होंगे कि मतलब लिटरली ऐसा लगता है कि यार मतलब ये नहीं होना चाहिए. मतलब हमेशा लोगों के मन में ना यही होता है कि डॉक्टर है तो वो गलती कर ही नहीं सकता, ठीक है, और आपके पेशे में गलतियों की कोई गुंजाइश भी नहीं होती है. आपको हर चीज़ को बहुत प्रिसाइजली देखना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है. बट एक मेंटल ब्रेकडाउन भी रहता है कि बहुत बार आपने बहुत कोशिश की पेशेंट को बचाने के लिए, बहुत सारी जितनी चीज़ें थी मेडिकल टर्म्स में, मेडिकल साइंस में, आपने सब कुछ किया, बट स्टिल अगर वो पेशेंट नहीं बच पाता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं. तो उस टाइम में क्या सिचुएशन होता है, मतलब किस तरीके से उस चीज़ों का आप मतलब देखती हैं, और वो उस टाइम आपने आपको किस तरीके से, मतलब एक कहते हैं ना कि वो नॉर्मल इंसान हमारे लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग सा सिचुएशन हो जाएगा, हम लोग उन चीज़ों को शायद झेल ना पाए, ठीक है, तो उस सिचुएशन को आप किस तरीके से झेलती हैं? I would touch wood, by the grace of God, I have never faced this. To be very frank, कि patient बच ना पाए, हम कुछ ना कर पाए. I have always worked in very good institutes. एक डॉक्टर की खूबी, I would say खूबी, of course हम सब अपना बेस्ट करते हैं, बट एक वाइटल पॉइंट होता है डॉक्टर कैसे कॉम्प्लिकेशंस को प्रिज्यूम कर सकता है माइंड में. कि एक मेरे पास पेशेंट आया है, अगर मेरे को इसकी सर्जरी करनी है तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है. अगर आपको पता है कि ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो आप वो ऑलरेडी पेशेंट और उसकी फैमिली को एक्सप्लेन करके रखते हो कि डेथ ऑन टेबल भी हो सकती है, 10 यूनिट ब्लड चढ़ाना पड़ सकता है, सब कुछ करना पड़ सकता है. उसको ट्रीटमेंट ऐसी जगह दो जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन, जहाँ पे कोई भी कॉम्प्लिकेशन तो किसी को भी हो सकती है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन आए वहाँ पे इफेक्टिव आईसीयू एंड सारे चीजें अवेलेबल हो, टू बी सो दैट द पेशेंट गेट्स द राइट ट्रीटमेंट एट द राइट टाइम. ऐसा नहीं है डेथ ऑन टेबल का, मैंने भी रिलेटिव से साइन दिया हुआ है. पेशेंट अगर 4 ग्राम हीमोग्लोबिन के साथ मैं उसका सिजेरियन कर रही हूँ, सो ऑफ कोर्स एनीबडी कैन डाई, बट touch wood, by the grace of God, I have never experienced it. Hopelessness आती है अपने प्रोफेशन में जब आप पेशेंट के लिए बहुत करते हो, बहुत उसको सारे मोस्टली विथ माई रिकरेंट IVF फेलियर पेशेंट्स, ये सब कर लिया, सारे टोटके लगा दिए, सारे कॉकटेल्स दे दी उनको मेडिसिन की एंड ऑल, कभी कभी नहीं हो पाते प्रेग्नेंट. पेशेंट बहुत डिसहार्टन होता है, बट वी एज डॉक्टर्स नो हम कितने डिसहार्टन होते हैं कि हमने सब कुछ किया तभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई. सो या उसके लिए है फिर वो मेंटल ब्रेकडाउन प्रिवेंट करने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं. कुछ चीजें हार्मोनल चेंजेस बहुत आती हैं प्रेगनेंसी के टाइम, तो उन महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं, मतलब कि एक प्रेगनेंसी से पहले और फिर प्रेगनेंसी के बाद, ये 2 फेज जो होता है ना, मतलब मेंटल ब्रेकडाउन भी होता है, इरिटेटेड रहते हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं, तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, और बच्चा हो जाता है, फिर उन बच्चा को संभालना, फिर वो रात रात भर जागना, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं कि किस तरीके से उनको रहना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए? I would say my patients often ask me, when do you think I'll be ready to be pregnant? And I always tell them you can never get ready to be, you can never be prepared for pregnancy and childbirth and having a child, because your life completely changes even after when you're pregnant. You know, body goes through so many changes, your organs are enlarging, the uterus is the size of a fist. 9 months में वो watermelon जितना होता है. So I mean पूरी backache, issues, everything, you have to be prepared. Also the husbands have a major role,
to play in pregnancy, childbirth, and raising the child. The husband has to be totally empathetic towards his wife. She is not in her usual element. She is under a lot of hormonal changes and everything. She's under a lot of hormonal changes, undergoing a lot of hormonal changes, and you have to support her in her journey, because she's confused why she's feeling this way, and the husband's tender love and care can only get her through this, because it's not she's having a child, it's both of you who are having a baby. सेम गोज इन थ्रू आउट हर प्रेगनेंसी. एक टिप होता है, सारी गर्ल्स को देती हूँ, अपने हस्बैंड से फुट मसाज करवाओ हर रोज शाम को. सो उससे उनका दे आर गुड, हस्बैंड भी कुछ काम करते हैं एंड उनकी फ्रस्ट्रेशन भी निकल जाती है. सो 9 months तो ऐसे निकल जाते हैं. Once you deliver, of course, get as much help as possible, be it your mother, be it your mother-in-law, be it your husband, be it nannies, be it helps. You have to have a full army ready. लोग बोलेंगे एक बच्चा ही तो है, हमने तो 10-10 बच्चे पाले हैं अपने टाइम पे, बट हम वैसे नहीं है. वी शुड हैव एडिक्वेट सपोर्ट so that we can give the best to our child and the best to our family, because mentally there are the statistics are so high for postpartum depression, and it goes unnoticed in 90% of the females. So to be able to identify those early signs of depression and to get help at the right time is very difficult. So it's always better to have your full army in place before the baby comes into the world. Getting adequate sleep at night is a very difficult task to achieve, but try to fill up on your sleeping schedule to prevent all of those things. But yeah, get as much as help as possible. I think that's the only way to get through rearing your child. अच्छा, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाते हैं चीज़ों को लेकर के. 14 Feb के बाद बहुत सारी अखबारों में बहुत सारी जगह से खबरें आती हैं कि काफ़ी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और सारी चीज़ें मिली हैं. तो इस तरीके की भी परेशानियां होती हैं, मतलब किसी ने गलत मेडिसिन ले लिया, कुछ ले लिया, तो इस टाइम के बाद भी क्या आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे कि कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई, कुछ परेशानियां हो गई, तो उसके बारे में अगर कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर कर सके तो. कॉन्ट्रासेप्शन इज समथिंग कपल्स आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओपनली. उनको पता ही नहीं है कि कॉन्डम कैसे यूज करना है, उनको पता नहीं है बर्थ कंट्रोल पिल कब शुरू करनी है, उनको ये नहीं पता कि आई पिल इज used to prevent pregnancy and not to abort an existing pregnancy. इतनी सारी चीजें हैं मार्केट में. Unfortunately, the FDA and the Drug Administration जो है वो pharmacists are just giving any pill off the counter. हमें abortion pill अगर हम किसी prescription पे abortion pill लिखते हैं, we have to notify the government कि मैंने इस लड़की को abortion pill दी है, because the PCPNDT Act is so strong in our city. PCPNDT is prenatal determination of sex. So मैंने किसी को abortion pill इसलिए तो नहीं दी है क्योंकि उसके पेट में लड़की है और उसको वो abort करनी है. हमें डॉक्टर्स को लॉ पता है, हम डर डर के pills लिखते हैं और लोगों को हेल्प करते हैं as far as abortion is concerned. But these people इनको डर लगता है डॉक्टर जजमेंटल मिलेगा तो फार्मासिस्ट पे चले जाते हैं. फार्मासिस्ट उनको ठीक से बता नहीं पाता कि कौन सी पिल किस चीज के लिए इस्तेमाल होती है. सो देयर आर पीपल फॉर डबल प्रोटेक्शन दे वेयर 2 condoms. देन द condom slips and breaks. That is not the way to use a condom. You only have to wear 1 condom at all times. बर्थ कंट्रोल पिल day 2 या 3 ऑफ द साइकिल पे चलती है, वो ओव्यूलेशन प्रिवेंट करती है. 21 डेज के लिए लेनी होती है. अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल को ठीक से नहीं ले रहे हो, डेली फिक्स टाइम पे नहीं ले रहे हो, तो ओव्यूलेशन हो सकती है और कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर हो सकता है. बर्थ कंट्रोल पे लोगों को लगता है ले ली तो उससे उनके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी नहीं होंगे, बट बर्थ कंट्रोल ओनली प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी. एसटीडी को प्रिवेंट करने के लिए आपको कॉन्डम यूज करना पड़ेगा. आई पिल is to be taken within 72 hours of having unprotected intercourse. जितनी जल्दी लोगे उतना बेटर इफेक्ट आएगा. अगर 1 हफ्ते के बाद लोगे वो 90% फेल होनी ही है. So I mean, these are some basics which I feel the whole world should know. Once you are turning 18, I think this should be a universal sex education which should be given. Not sex education जो schools में मिलती है वो होता है, इसको vagina बोलते हैं, इसको penis बोलते हैं, इसको breast बोलते हैं, good touch होती है, bad touch होती है. But contraception is something which everyone should know. This is the base. This should be the basis of
every form of education to the boys and girls, because they should be they should be in charge of their bodies. That's what's very essential. आपकी क्या राय होती है, जो भी कपल्स आते हैं या फिर जो भी नए बच्चे आते हैं कुछ भी परेशानियों को लेकर के, तो उनको एक टिप आप जरूर देती होंगी, तो वो एक बेसिक सा एकदम कि कहते हैं ना कि इन बातों को भाई तुम अपने गांठ बांध के रख लो, इससे ऊपर ना नीचे कुछ करना, तो वो ऐसी कोई बात होगी जो आप मतलब हमारे ऑडियंस को भी बताएं, ताकि आपसे बातें करके ना बहुत सारी चीजें हमें पता चल रही है, बहुत नए पर्सपेक्टिव पे हमने आज मतलब सुना है कि किस तरीके से कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज करना है, क्या चीजें होती हैं, तो वो कहीं ना अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाकी जितना भी इंफॉर्मेशन अगर हम लोग स्क्रॉल करते हैं या फिर देखते हैं सोशल मीडिया, वो कुछ अजीब सी इंफॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, तो राइट इंफॉर्मेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर महिमा, और आप सच में बहुत अच्छा काम कर रही हैं कि राइट इंफॉर्मेशन पहुंचाना लोगों तक और सही तरीके से बताना, सारी चीज़ों को बहुत क्लियर करके बताना कि नहीं, ये चीज़ें होनी चाहिए, इस तरीके से आपको करना चाहिए, कोई भी मिसकंसेप्शन आप क्रिएट नहीं कर रही इन चीज़ों को लेकर। तो वो एक जो छोटी सी राय है ना, वो जो नए कपल्स हैं उनके लिए, या फिर जो भी सेक्सुअली काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं लोग सर्टेन एज के बाद, जो कॉलेज गोइंग बच्चे होते हैं या फिर छुप के करते हैं जो भी है, तो उनको भी कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि एटलीस्ट वो अपने जिंदगी को इस तरीके से ना बना दे कि उनके लिए फिर आगे चल के कॉम्प्लिकेशन पड़े और जो परेशानियां आए। One thing which I tell them at all times is, because you cannot anticipate these things if you're not in a regular sexual relationship, as far as contraception is concerned, you use a condom at all times. Condom prevents pregnancy 95 to 99%, and that is a very good percentage. Also it protects you against STDs, जो कभी कभी बॉयज को भी नहीं पता होता उनको होती है, या गर्ल्स को भी नहीं पता होता उनको होता है, कोई herpes rash हो या कुछ हो, then they can transfer the rash, you can transfer the rash to your partner. So I think condom is the go-to which you should always carry, even if you're not in a regular relationship, and suddenly by chance it happens, then that should be the thing. Hormones ऐसे pop in नहीं करने चाहिए, but if there is a contraceptive failure, अगर आपने condom use करा, condom break हो गया, slip हो गया, then IPIL is the choice for you. Emergency contraceptive जो होती है high dose, that is to be taken within 72 hours of बट वो डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के साथ वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल जाती है, बट आपको पता होना चाहिए कि वो 72 आवर्स से पहले पहले आपको लेनी है। ओके, इसके लिए कोई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, एज पर है रूल्स हम तो देते हैं, बट फार्मासिस्ट बिना उसके भी आपको दे सकते हैं। सो अगर आपको डॉक्टर के पास जाने में हिचकिचाहट हो रही है, देन एटलीस्ट यू शुड नो that you're supposed to consume it within 72 hours. अच्छा, रिसेंटली ना बहुत सारी चीजें देखने को आई हैं, जो लोग जिम जाते हैं, एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं, अलग अलग सप्लीमेंट्स लेते हैं, उनको भी लेकर के बहुत सारी परेशानियां आते रहती हैं, तो कई तो डेथ्स भी हमने देखे हैं, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को इश्यूज हो गए, ब्रेन हैमरेज हो गया, तो बहुत सारी चीजें, उसका इम्पैक्ट अगर देखें अगर बॉडी पे फॉर न्यू जो नए लोग होते हैं उनके ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, जब वो कंसीव करना चाहते हैं, तो क्या उसका भी इम्पैक्ट है इन चीज़ों का, जो सप्लीमेंट्स का उसका बॉडी पे इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है डॉक्टर महिमा? Exactly, this is I think a very important point you have highlighted regarding the effect of these protein supplements which are available in the market on your body. So I would suggest कि जो भी supplement आपको कोई भी एडवाइस करता है, पहले प्रॉपर रिसर्च करिए कि उस सप्लीमेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके पीछे फूड लेबल होता है, एक एक लेबल को गूगल सर्च में डाल के देखिए कि वो स्टेरॉइड तो नहीं है, बिकॉज स्टेरॉइड्स आर अ बिग कंपोनेंट ऑफ दी सप्लीमेंट्स व्हिच आर हिडन इनसाइड दीज, एंड चाहे वो जितना भी अपने आप को उसमें हर्बल, ऑर्गेनिक, ये सब कीवर्ड्स डालते हैं सप्लीमेंट्स में, फॉर अस टू बी ट्रस्टिंग दोज सप्लीमेंट्स which they are not. So I had a experience with me a few years back where one of the mothers, I knew her personally, so she messaged me her son's semen analysis report, and अब इसमें मजे की बात यह है कि सन की एज was 18 years old. Okay.
unmarried of course. So I told her, why have you gotten this done? Was there an injury? You know, kabhi kabhi penile injuries, testicular injuries hoti hain that they want to get test ki sab theek hai. So she's like, no, there was no injury, but he is into a lot of gymming, and he has started some supplements and some protein supplements. And the gym instructor said, because he was asking a lot of questions, so the gym instructor said, if you have some problem, then just get a semen analysis done. Pata lag jayega if you are, actually having any problem. And fortunately कह लो या unfortunately कह लो, द मोटिलिटी, स्पर्म के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कि वो कितना कॉन्सेंट्रेशन है, कितने नॉर्मल फॉर्म्स हैं, कितने नॉर्मली लुकिंग स्पर्म्स हैं, एंड मोटिलिटी इज द एक्चुअल कंपोनेंट कि स्पर्म हैव टू स्विम इनसाइड अ वुमन्स यूट्रस टू रीच द एग. मोटिलिटी वाज 0%. So normally motility, minimal जो motility होती है, that is should be around 32 to 40%. So, and I was quite shocked looking at that report because I had never experienced something like that. So these supplements do actually have an impact on your fertility, and male fertility, and probably female also. I don't know how many females are having protein supplements. I'm not abreast to that statistics, but yeah, you should be very careful of what you are putting in your body. Try to go as natural as possible. There are a lot of high protein foods which are available in the market, which you should be consuming. There is these chana and lentils and dals and powders. ये सब natural powders आते हैं. I would suggest you कि आप वो लो rather than just buy anything off the market and filled with preservatives and probably steroids, God knows what. So you should always know what is going inside your body, because हर चीज का long term implication देखो, तभी आपको अभी 6 महीने कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तो खाता हूँ मुझे कुछ नहीं हो रहा, उसको होएगा. लॉन्ग टर्म देखो आपकी हेल्थ क्या है, आपकी बोन डेंसिटी तो नहीं कम हो रही है, आपको एरेक्टाइल डिस्फंक्शन तो नहीं हो रहा, आपको स्पर्म काउंट तो तभी पता लगेगा इफ यू गेट द टेस्ट डन. सो एवरीथिंग यू शुड बी रीडिंग द फूड लेबल्स. काफी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था और काफी इम्पोर्टेंट चीज आपने बताई कि मतलब खास करके ये तो हमारे जितने भी यंग लोग हैं जो जिम कर रहे हैं और सप्लीमेंट्स वगैरह ले रहे हैं, काफी इम्पोर्टेंट है उनके लिए कि जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उनकी प्रॉपर एक हिस्ट्री, रिसर्च, सारी चीजों को समझ करके ही प्रोडक्ट यूज करें. नहीं तो आपको कहीं ना कहीं वो शरीर पे इम्पैक्ट डालेगा, वो किसी भी एस्पेक्ट में डाल सकता है. एंड डॉक्टर महिमा, आपने बहुत इंसाइटफुल बातें बताई हैं. रियली मतलब बहुत मजा आया आपसे बातें करके, और बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी बताए हैं जितने यंग लोग हैं जो कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं टॉपिक्स की बात करने के लिए. अभी भी इंडिया में सेक्स को लेकर के बातें करना ना, वो बहुत ही ऐसा लगता है कि यार इसने ये क्या शब्द बोल दिया. ठीक है, तो इसको नॉर्मलाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और नॉर्मलाइज शायद हम आप जैसे लोग ही कर पाएंगे. जितना ज़्यादा लोगों को अवेयर करें, जितना ज़्यादा लोगों को बताएं कि नहीं, सेक्स एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट. आपको अपनी शरीर की जो है ना समझ होनी चाहिए. आपको अपनी बॉडी का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा. अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, डेफिनेटली इसके हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बहुत ही निगेटिव भी हो सकते हैं. तो थैंक यू सो मच डॉक्टर महिमा, हमारे पास आने के लिए, WTI टॉक्स में अपना समय देने के लिए. काफ़ी बिजी रहती है डॉक्टर महिमा, काफ़ी सारे पेशेंट्स अभी वेट कर रहे होंगे इनके. एंड वी आर वंस अगेन थैंकफुल टू डॉक्टर महिमा फ्रॉम द इंटायर टीम ऑफ WTI स्पेस. अभी और भी लोग हैं, बातें करेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था डॉक्टर एज एन डॉक्टर इन्फ्लुएंसर. डॉक्टर महिमा बहुत काबिल तारीफ काम कर रही हैं, चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से बता रही हैं कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत है. सही और गलत का जो एक दीवार है ना, उन्होंने बिल्कुल डिफाइन करके रखा है, और उसी बाउंड्री को बिल्कुल ध्यान रखते हुए चीज़ों को बता रही हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू. और काफ़ी अच्छे अच्छे इनके Q&A सेशंस भी होते हैं. आप लोग डेफिनेटली जाकर के ज्वाइन कीजिए. पॉडकास्ट जब आए आप देखिए, उसके बाद फिर उसको ज्वाइन कीजिए और डॉक्टर महिमा से सवाल भी पूछ सकते हैं. डॉक्टर महिमा विल डेफिनेटली आंसर यू. जितनी हेल्प हो सकती है आपको हेल्प करेंगे, बिकॉज नॉन जजमेंटल है. एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर आने के. Thank you so much for having me.